عورتوں کی کہانیاں تو بہت سنائیں، آج ایک مرد کی داستان اس کی زبانی بیان کی جا رہی ہے۔ آج مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ کیوں یاد آیا؟ کسی کو کیا معلوم۔ میں نے جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی وہ کبھی نہ ملی۔ انسان کی زندگی میں کئی قسم کے حادثات پیش آتے ہیں، خوشی بھی، رونا بھی، لیکن مجھے تو رونا بچپن سے ہی مل گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ ہوش سنبھالا تو مجھے ان دو چیزوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی جو دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، جن کے بغیر انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا وقت بھی نہ دیا کہ ماں کو ماں کہہ سکوں۔ امی کہنے کو میری زبان ترس گئی۔ اے کاش میں اپنی امی کو ایک بار امی کہہ کر پکار سکتا۔ ایسی قسمت کہاں، بد نصیب ہوں، یتیم ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو زندگی بھر میرے ساتھ جڑ گئے، جن سے میں مرتے دم تک نجات نہ پا سکا۔ میں تقریباً 2 سال کا تھا جب میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ قسمت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرے لیے کیا چھوڑا؟ صرف دکھ جو میں آج تک جھیل رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بھابھی کیا آئیں، گھر میں جیسے روشنی آ گئی۔ سب بہن بھائی کہنے لگے، طارق تمہاری امی آ گئی، یہ تمہاری امی ہے۔ میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا، اتنی سمجھ بوجھ بھی نہ تھی کہ اپنے اور پرائے کی پہچان کر سکوں۔ میں نے انہیں امی کہنا شروع کر دیا اور وہ واقعی میری ماں بن گئی۔ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، ہر ایک سے میرا تعارف کرایا، ہر رشتے کا شعور دیا۔ میرے والد صاحب آرمی میں کیپٹن تھے۔ ہم 4 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کے بعد دلدار بھائی صاحب جو مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ دل اور بھائی جان ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ میرے لیے وہ واقعی ایک فرشتہ تھے جنہوں نے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ بھائی جان نے لاہور لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی لاہور بلا لیا اور مسلم ٹاؤن کے پاکستان ماڈل ہائی اسکول میں داخل کروایا۔ بھائی جان کسی مجبوری کی وجہ سے وکالت کا کورس مکمل نہ کر سکے، کیونکہ ان کا شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ میں بھی آرمی میں جا کر اپنے والد کی طرح ملک و قوم کی خدمت کروں۔ میں بھائی جان کے ساتھ 2 سال پڑھتا رہا۔ انہیں یہ شوق تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں۔ ہمارے رشتہ دار گلبرگ میں رہتے تھے۔ بھائی جان لاء کالج چلے جاتے اور میں اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آتا، کھانا کھاتا اور پڑھنے بیٹھ جاتا۔ بھائی جان نے میرے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ طارق کو پڑھا کر یہ بنائے وہ بنائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میں زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن محلے کے لڑکوں کے ساتھ فضافی اسٹیڈیم چلا گیا۔ دوسرے لڑکے مجھے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ اکیلا ہی گھومتا گھومتا گلبرگ چلا گیا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اپنی کوٹھی کے گیٹ پر کھڑی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹے گھر جلدی آ جانا، زمانہ بہت برا ہے ورنہ پٹائی کر دوں گی۔ سمجھ گیا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ہاں امی سمجھ گیا، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور چل دیا۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور مجھے احساس ہوا کہ کاش میری امی بھی زندہ ہوتی۔ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے آواز دی کہ بیٹے ادھر آؤ، کیا سگریٹ پی رہے ہو اس عمر میں؟ میں نے سگریٹ نیچے پھینک دی۔ وہ بولی بری بات ہے۔ میں نے جب نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں روئے جا رہا تھا، اپنا بازو چھڑا کر بھاگا تو انہوں نے اپنے نوکر کو کہا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ نوکر نے مجھے پکڑ کر ان کے پاس لا کھڑا کیا۔ وہ مجھے اپنے بنگلے کے اندر لے گئے۔ میں کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کیا بات ہے، رونے کی وجہ تو بتاؤ، کیا راستہ بھول گئے ہو، کیا ہوا؟ اتنے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی، بیٹا پانی کا گلاس لاؤ۔ بیٹی دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ مجھے زبردستی پانی پلانے لگی، حالانکہ مجھے پیاس نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی میں نے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، سب میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئیں اور مجھ سے سوالات شروع ہو گئے کہ کہاں کے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ امی یہ لڑکا ہے کون اور کیوں رو رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں سیال کوٹ کا رہنے والا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں بھی رونے لگیں اور ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
थोड़ी ही देर खामोशी छा गई। फिर वो औरत बोली कि बेटे इधर क्या करते हो? मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि मुझे जाने दें वरना मुझे मार पड़ेगी। मैं हैरान था कि उन सबको मेरी बात सुनकर रोना क्यों आ गया। वो कहने लगी कि तू भी मेरे वाजिद बेटे जैसा है, मेरा एक ही बेटा है और दूसरा तू अब मिल गया। जब वाजिद तुम्हें देखेगा तो बहुत खुश होगा, मेरा दूसरा भाई भी मिल गया है। इसी दौरान उन सब से घुल मिल गया, ऐसे जैसे इसी घर का फर्द हूँ। मैं उस औरत को अम्मी कहने लगा। मुझे जाने दे, देखें काफी देर हो गई, थोड़ी देर और बैठो, वाजिद आता ही होगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। ये सब बातें मैं उनकी बड़ी बेटी रुबीना से कर रहा था। मुझे क्या पता था कि अम्मी से पूछे बगैर जाना मुश्किल होगा। अम्मी ने दूसरे कमरे से आवाज दी, बेटी रुबीना तारिक को कमरे में ले आओ। मैं बिना झिझक कमरे में चला गया। अम्मी बोली, बेटे कमीज की जेब में क्या है? मैं चौंक गया। कुछ भी नहीं, मैंने कहा। करीब आओ। अम्मी ने मेरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, उसे तोड़कर टोकरी में फेंक दिया और बोली, आइंदा के लिए तौबा करो और मुझसे वादा करो कि सिगरेट को हाथ तक ना लगाओगे। तौबा तौबा। मैंने फौरन तौबा की। कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अम्मी माँ का लफ्ज सुनते ही वो बोली, तुम्हें अम्मी बहुत याद आती हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। बोली, क्या मैं तुम्हारी अम्मी नहीं? मैंने कहा, क्यों नहीं, आप ही मेरी अम्मी हैं और मैं आपका बेटा हूँ। सवाल जवाब हो ही रहे थे कि वाजिद भी आ गया। आते ही बोला, अम्मी जरा देर हो गई, माफी चाहता हूँ, मगर ये लड़का कौन है? अम्मी ने जवाब दिया, ये लड़का नहीं, तुम्हारा भाई है, इसका नाम तारिक है। वाजिद ने सब कुछ जानना चाहा। अम्मी ने सारी बातें बता दी। जब उसे सब मालूम हो गया तो वो मुझसे हाथ मिलाते ही गले लग गया। मुझे खुश करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। बोला, तारिक चलो कहीं घूमने चलते हैं, स्कूटर तो है, अगर डैडी जल्दी आ गए तो गाड़ी भी मिल जाएगी। मैंने इजाजत चाही, लेकिन अम्मी ने बहुत इसरार किया। कहने लगी, वाजिद तुम्हें छोड़ आएगा और तुम्हारा घर भी देख लेगा। अगर तुम खुद ही न आए तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इन्हें अपना घर कैसे दिखाऊं। फौरन एक तरकीब जहन में आई, क्यों ना अपने आप को किसी का मुलाजिम जाहिर कर दूं। झूठ तो बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यही होगा कि आइंदा इस तरफ रुख नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं मुस्लिम टाउन में एक घर में मुलाजमत करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, साथ पढ़ाते हैं, लेकिन आप जैसे नहीं हो सकते। आप बहुत अच्छे हैं। अम्मी ने हैरत से पूछा, क्या तुम वाकई किसी के घर मुलाजमत करते हो? फिर दुआएं देने लगी। बोली, तारिक बेटे, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं रहने दूंगी। तुम दोबारा आओगे, मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें अपने घर ले आऊंगी। अच्छा अब जाऊं? जल्दी वापस आना। देखो माँ को भूलोगे तो नहीं? मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? अम्मी ने कहा, अगर वो लोग ज्यादा नाराज हो कि तुम इतनी देर कहाँ थे तो बेशक हमारा बता देना। जाओ। मैं अल्लाह हाफिज कहकर गेट से निकल ही रहा था कि एक कार मेरे सामने आकर रुकी। शायद वाजिद के डैडी हों, मगर मैंने कोई खास तवज्जो न दी और सीधा घर चला गया। मेरे इंतजार में भाईजान सख्त परेशान थे। ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, बस 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए, मगर मुझे कुछ महसूस न हुआ। मेरा दिल और दिमाग तो गुलबर्ग के उस घर में अटका हुआ था जिनसे मैं झूठ बोलकर आया था। भाईजान ने उस दिन से सख्ती कर दी। कहने लगे, आइंदा अगर इतनी देर घर से गायब रहे तो अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो खाना खाओ। लेकिन मेरी भूख खत्म हो चुकी थी। 2 लुकमे के लिए और छोड़ दिए। अगले दिन स्कूल गया। हमारे घर के साथ वो घर था, वहां बहुत अच्छे लोग रहते हैं। उसका बेटा निसार मेरा बहुत करीबी दोस्त था। स्कूल से वापस आकर सीधा निसार के पास चला गया। मैंने सारी कहानी निसार को सुना दी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा है कि मैं किसी के घर काम करता हूं, हो सकता है वो किसी ना किसी दिन वहां आ जाए। उन्होंने मुझे बेटा कहा है और मैंने उन्हें माँ कहा है। झूठ बोला, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यही हो सकता है कि मैं कहूँ तुम्हारे घर का काम करता हूँ। तुम बात करना, अगर ये सारा भेद खुल गया तो मेरे लिए अच्छा ना होगा, उन्हें बहुत दुख होगा। मैं तो वैसे भी सियालकोट जा रहा हूँ, फिर कभी कभार तुम्हें मिलने आया करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ वो लोग कब आ रहे हैं? इतवार को मेरी छुट्टी है, इतवार को ही उनके यहाँ जाऊंगा, फिर वो मेरे साथ आएंगे। निसार तुम घर पर रहना। इतवार का दिन आया। मैं गुलबर्ग अम्मी के पास चला गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर हुई थी कि रुबीना मेरे लिए खाना लेकर आ गई। सबने बैठकर खाना खाया। कुछ देर बाद वाजिद के डैडी भी आ गए। आते ही पूछा वाजिद की अम्मी, आज इतवार है, हमारा बेटा तारिक नहीं आया? अम्मी ने कहा, तारिक कब से आया हुआ है? उन्होंने आवाज दी, बेटे उठो।
वाजिद के डैडी तुम्हें देखने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं। मैं बहुत शर्मा रहा था, बड़ी हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। वो बोले, बेटे तुम आइंदा हमारे यहाँ रहो, ये तुम्हारा अपना घर है। अम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तारिक बेटा इधर ही रहेगा, उसे भी वाजिद के साथ स्कूल में दाखिल करवाएंगे, दोनों भाई इकट्ठे पढ़ा करेंगे। जहां ये काम करता है वाजिद को साथ ले जाकर वहां जाऊंगी, बात करके हमेशा के लिए तारिक को अपने पास ले आऊंगी। वाजिद के डैडी बोले, जरूर। मैंने कहा, हमारे साहब जो हैं आजकल कारोबार के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, जाने का कोई फायदा नहीं, 10-15 दिन में वापस आएंगे, उनके आने पर हम तुम्हें ले आएंगे। ये तो मेरे दिल या मेरे अल्लाह को पता था कि आखिर ये माजरा क्या है, कौन उसके घर में आएगा। मैं अपनी गलती पर बहुत रोया, अगर झूठ ना बोलता तो बेहतर होता। अब कुछ भी नहीं हो सकता था सिवाय पछतावे के। मैं अपने घर वापस आ गया। घर आकर भी सोचता रहा कि क्या होगा, मेरा दिल भी घर में ना लगा। दिल के हाथों मजबूर होकर फिर मैं उनके घर चला गया। 15वां रोजा था। रोजा खोलने से पहले ही अम्मी के पास चला गया। सब अफ्तारी की तैयारियां कर रहे थे। मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए, जैसे कोई बरसों से गुमशुदा चीज वापस मिल गई हो। मेरा रोजा न था, फिर भी मैं उनके साथ बैठकर खाया पिया। रुबीना पूछने लगी, तुम्हारे साहब वापस आ गए? मैंने यूं ही मजाक में कहा, नहीं। हाँ, अगर आ भी गए हो तो मुझे हरगिज ना छोड़ेंगे, हो सकता है कि मैं उस घर में ना आ सकूं। वो रो पड़ी, कहने लगी, तारिक ऐसा मत कहो, वो क्यों ना छोड़ेंगे, ये कैसे हो सकता है? तुम इस घर में जरूर आओगे, क्या तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं? जब रूबी की आंखें ज्यादा भर आईं और वो रोने लगी तो मैंने कहा, रोती क्यों हो, वो तो कल रात ही आ गए थे। इतने में रूबी की अम्मी भी आ गईं। अम्मी ने रूबी की तरफ देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थी, गालों पर 1-2 आंसू भी ठहरे हुए थे। अम्मी बोली, देखो बेटे, रूबी को तुमसे कितना प्यार है, इसी वजह से वाजिद और कौसर को भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। जब तुम नहीं आते तो पूछते रहते हैं, तारिक आया नहीं, क्या बात है, घर क्यों नहीं आया? अगर ना आओगे तो वो खुद जाकर तुम्हें ले आएंगे, क्योंकि उन्हें तुमसे प्यार है। उन्होंने कहा, मैं भी उस घर के लिए तड़पता हूँ। बात खत्म होते ही अम्मी बोली, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वाजिद को आवाज दी, वाजिद ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और तुम भी तैयार हो जाओ, तारिक के साथ जाना है। वाजिद का खुशी से बुरा हाल था, मेरे साथ जाने का जब भी नाम लेते तो खड़े हो जाते। मैं उनको साथ ले गया। वहां निसार इंतजार में था, बाहर आया। हम जब ड्राइंग रूम में पहुंचे तो निसार हमें देखते ही फौरन अंदर चला गया। मैंने बेल बजाई, अम्मी को अंदर बैठाया और चाय लेने चला गया। जब वापस आया तो वाजिद बोला, चाय बाद में पियेंगे, पहले उन साहब को बुलाओ जो तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देंगे, और तुम खुद भी तैयार हो जाओ। मैंने निसार को बुलाया, आते ही उसने सलाम किया। निसार और वाजिद की गुफ्तगू शुरू हो गई। निसार बोला, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, डैडी आएंगे तो वही बात करेंगे। वाजिद की अम्मी ने पूछा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? निसार बोला, वो तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गई हुई है। बात ना बन पाई, वो सब गमगीन होकर वापस चले गए और कह गए कि परसों दोबारा आएंगे। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया, अगर वो परसों आए तो ना जाने क्या होगा। मैं इंतजार करता रहा मगर वो ना आए। चंद दिन बाद ही ईद थी। मेरा इरादा था कि सियालकोट जाकर ईद मनाऊं। मेरा नाम जरूरी था क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया था और हमेशा के लिए सियालकोट वापस जा रहा था। लाहौर में अकेले कैसे रहता? भाईजान को आर्मी में कमीशन मिल गया था। ईद से पहले मैं खुद ही वाजिद, अम्मी और सबसे मिलने चला गया। अम्मी से मुलाकात हुई, रूबी, कौसर और वाजिद सभी आ गए। उन सबको मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं खुद हैरान रह गया। मैंने अम्मी से कहा, मैं ईद करने सियालकोट जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईद के बाद जल्द वापस आऊंगा। अम्मी बोली, बेटे क्या ईद हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब दिया, जरूर करता, मेरा भी दिल यही चाहता है कि आप लोगों के साथ ईद मनाऊं और हमेशा के लिए यहीं आ जाऊं, लेकिन सियालकोट जाना भी जरूरी है। अम्मी बोली, अच्छा बेटे, अगर जाना जरूरी है तो तुम्हारी खुशी, थोड़ी देर बैठो तो सही। रूबी भाई भाई करती हुई आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था जो लाकर मुझे दे दिया। कहने लगी, ये तुम्हारी ईदी है, अगर हमारे साथ ईद करते तो बहुत अच्छा लगता। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। घर का एक एक फर्द मुझसे वादा ले रहा था कि तारीख को ईद के बाद जरूर आना होगा, वरना हम नाराज हो जाएंगे। रूबी का तो रो रो कर बुरा हाल था, मुझसे बात तक ना कर रही थी।
जब उसे यकीन हो गया कि तारिक रुकेगा नहीं, जाना ही है, तो मजबूर होकर कहने लगी, देखो मुझसे झूठ नहीं बोलना, खुदा के लिए वादा करो कि वापस आओगे ना। मैंने जवाब दिया, हाँ जरूर आऊंगा। सबसे बारी बारी मिला, सबकी आंखों में आंसू थे, मेरी अपनी आंखें भी नम हो गईं। मेरी चीख निकल गई जैसे कलेजा फट रहा हो। मुझे मालूम था कि ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात है, क्यों ना जी भर के बातें कर लूं, शायद दोबारा ना मिल सकूं, मुंह भी ना दिखा सकूं। झूठ तो झूठ होता है, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। अम्मी ने बड़े प्यार से मुझे रुखसत किया, घर पहुंच गया, मगर दिल को कोई सुकून न था। ईद का भी कोई मजा ना आया, हर वक्त मेरा दिल और दिमाग लाहौर में अटका रहता। ईद को गुजरे 1 महीना हो चुका था, निसार के खत का इंतजार था। आखिरकार खत आ ही गया। खत हाथ में ही था, मगर इतनी हिम्मत न हो रही थी कि खोलकर पढ़ सकूं, ना जाने इसमें क्या लिखा होगा। काफी देर बाद जब खत खोला तो पढ़ते ही चकरा सा गया, यूं लगा जैसे क़यामत टूट गई हो। खत में लिखा था, डियर तारिक आदाब, तारिक आप अपनी कारकर्दगी का अंजाम भी पढ़ लो। तारिक किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। मैं उस दिन को बहुत पछता रहा हूँ जब वाजिद और उसकी अम्मी पहली बार आए थे। मुझे उसी वक्त सच बता देना चाहिए था कि ये सब कुछ गलत है। अब सुनो, मैं उस दिन घर पर ना था, किसी काम से बाहर गया था। वाजिद और उसकी अम्मी और बहन घर आए। मेरी अम्मी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, क्या तारिक ईद के बाद वापस नहीं आया? अम्मी ने बताया कि तारिक तो मेरे बेटे का दोस्त है, हमारा मुलाजिम नहीं। उसका भाई सियालकोट गया, वो भी उसके साथ चला गया। ये सुनकर वाजिद की अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा तारिक, जो मेरे हमशक्ल था, बरसों पहले खो गया था। बहुत तलाश किया मगर ना मिल सका। उसकी याद में माँ बाप बहन भाई सब तड़पते रहे और आज भी तड़प रहे हैं। वो रो रो कर चली गई। तारिक, तुम अब उन लोगों को दोबारा नहीं मिल सकोगे, लेकिन एक माँ के जज्बात को तुमने बहुत ठेस पहुंचाई है। वो माँ जिनका बेटा खो गया था और जिसने तुम्हारी शक्ल और नाम में अपने बेटे की शबीह तलाश की। मैं कई मर्तबा लाहौर गया, गुलबर्ग भी गया, मगर घर के सामने जाकर भी हौसला ना हुआ कि दरवाजा खटखटाऊं। कई बार छुपकर उन लोगों को देखा, ऐसा लगता है जैसे वो वाकई मेरी माँ हो। मैं भी तो माँ के प्यार को तरसा हुआ था। शायद किसी नफ्सियाती कमी के बाइस मैंने ये झूठ बोला। काश मैं ऐसा ना करता, काश ये झूठ ना बोलता, तो सब कितना अच्छा होता। Wow.